Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video, that is day 7 of this playlist, Dynamic Programming, we are going to see a very important problem, that is minimum subset sum difference. ओके सो सबसे पहले हम ऑब्वियसली इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, फिर कैसे ये नैपसैक का वेरिएशन है ये समझेंगे, देन उसके बाद हम इसको कैसे रिकर्जन और डीपी से सॉल्व कर सकते हैं, उसका टॉप डाउन अप्रोच ये सब देखेंगे. ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग I have a important information for you about Newton School, so let's just see that. Okay, so as we all know that Newton School is an e-learning platform which provides you different services like pay after placement program, launchpad initiative, and these days they also have Newton School master's degree program. So if you want to know anything about these three programs, you can just ask me anytime in comments. I will explain you. Now they have one grand coding contest right now. Okay, so in which there are cash prizes for you up to 5 lakh rupees. So if you are from anywhere who is interested in competitive programming, you can just participate in grand coding contest of Newton School. Okay, just head towards newtonschool.co, go to grand coding contest button in the menu and join for free. Okay, so there are cash prizes for you and you can just participate for free. Registrations are absolutely free. Just log in your account and participate in this grand coding contest. Okay, and this is a global contest, so anyone from anywhere around the world can participate in this. And one more thing, if you are from top performers, you will also get a chance like job opportunities and exciting gifts and exciting prizes. For first prize there is 50k prize, for second 25k, and for third 15k, and there are also prizes for 100,000 random coders from the list. Okay, so to know more about this, just go to newtonschool.co and check their grand coding contest. One more thing, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go to YouTube and subscribe this YouTube channel where we are posting almost regularly uploading the video so that we can complete our computer science programming thing very soon. And right now we are heading towards dynamic programming, in which we have already seen knapsack and their variations. Okay, so now let's just start today's video. And in today's video we are going to see minimum subset sum difference, which is also a knapsack variation. Okay, so हम knapsack की इतनी problems देख लेंगे कि दोबारा से कभी भी हमें knapsack का कोई भी variation दिखे हमें सब समझ में आ जाए तुरंत. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट डिफरेंस की या फिर सबसेट सम डिफरेंस की. ठीक है, तो होता क्या है, सिंपल से वर्ड्स में बता रहा हूं, हमें एक एरे गिवन है, ठीक है, या यू कैन से पॉजिटिव इंटीजर्स का एक सेट गिवन है. वी हैव टू डिवाइड दिस एरे इनटू टू सबसेट्स. हमें टू सबसेट्स में डिवाइड करना है, यू कैन से S1 एंड S2 एंड कॉल इट एज S. ठीक है, और हमें ऐसे डिवाइड करना है कि इसका जो टोटल सम है दैट इज सम 1 एंड सम 2. ओके, इनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है दैट इज सम 1 माइनस सम 2. एब्सोल्यूट डिफरेंस मींस मॉड. ठीक है, पॉजिटिव डिफरेंस. अगर सम 1 बड़ा है तो माइनस सम 2 करो, अगर सम 2 बड़ा है तो माइनस सम 1 करो. ठीक है, इसको हमें मिनिमाइज करना है. ठीक है, इसको मिनिमाइज करना है, सम 1 माइनस सम 2, और सारे के सारे एलिमेंट्स किसी एक सेट में होने ही चाहिए, इधर इन सेट 1 और इन सेट 2. ठीक है, तुम किसी भी एलिमेंट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. सो दिस वाज माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट. एंड अब ये डीपी क्यों है, ये नैपसैक का वेरिएशन क्यों है, इस पे बात हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली मैंने इतने सारे वीडियोस इतने क्वेश्चंस में बता दिया है, तो आई होप कि आप लोगों को इजिली गेस कर लिया हो डीपी और नैपसैक क्यों है ये. ठीक है, सपोज मेरे पास दो सेट है, मैंने S1 और S2 दो कंटेनर बनाए जिसमें मैं अपने एलिमेंट्स डालूंगा. ठीक है, अब मैं अपनी एरे में गया, अपनी एरे में आई हैव टू चूज एट एवरी इंडेक्स. मुझे हर एक एरे A ऑफ I के लिए आई हैव टू मेक अ डिसीजन दैट ईदर आई हैव टू पुट इट इन S1 सबसेट और इन S2 सबसेट. ओके, सो आई हैव अ चॉइस for every index. I have a choice. Okay, and my main motive is to minimize difference. Okay, so in this way you can say that I have a choice to put
each and every element in either of the subset, that is subset 1 and subset 2, and my main motive is to minimize the absolute difference. Okay, so I have a choice and I have to maximize or minimize something, so we can easily say that this is DP. Okay, fine. Why knapsack variation? You can easily check it out. Like तुम्हारे पास knapsack में होता क्या था, तुम्हारे पास हर एलिमेंट को पुट करने की एक चॉइस रहती थी कि तुम्हें उसमें डालना है कि नहीं डालना. तो वी हैव अ चॉइस एंड इन दिस वे यू कैन से दिस इज अ knapsack वेरिएशन. ओके, तो यू कैन से कि तुम्हारे पास दो knapsack हैं, तुम्हारे पास दो knapsack हैं और उन दोनों में तुम्हारी क्या है लिमिट है, अभी वो चीज देखते हैं. तुम्हें दोनों knapsack का सम डिफरेंस जो है वो मिनिमाइज करना है. ठीक है, फाइन. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन को हेड टुवर्ड्स करने से पहले. ठीक है, कि मेन मोटिव क्या है हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का. ठीक है, सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक एरे ली. ठीक, ये मेरी एरे थी. तो अगर मैं क्या करूं, इससे एक सबसेट 1 बनाऊं, S1. ठीक है, S1 मैं इसका एक ब्रूट सॉल्यूशन बता रहा हूं. ठीक है, ब्रूट सॉल्यूशन इन द सेंस कि हम बिल्कुल ही ब्रूटली थिंक कर रहे हैं कि हमें कैसे अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इस टोटल एरे का जो है वो सम मानू सम. ठीक है, इस टोटल एरे का जो सम है वो मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया. नाउ मैं क्या करूं, एक कंटेनर लूं S1 और S1 में मैं जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं फ्रॉम एरे A, मैं उन सारे सबसेट्स को इसमें लेके देख लूं. पॉसिबल सबसेट मींस कि मैं सारी की सारी कंडीशंस देख लूं कि करंट एलिमेंट की मेरी दो पॉसिबिलिटी है, मैं उसको या तो डालूंगा, दैट इज या तो नहीं डालूंगा. ठीक है, 0 और 1. फिर सेकंड एलिमेंट की मेरी दो पॉसिबिलिटी है, मैं उसको डालूंगा या तो नहीं डालूंगा. ठीक है, इसको डालूंगा या तो नहीं डालूंगा, इसको डालूंगा या तो नहीं डालूंगा. ठीक है, हर एलिमेंट की मेरी दो पॉसिबिलिटी है. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट से मेरे पास n है. ठीक है, तो हर एलिमेंट की दो पॉसिबिलिटी मींस 2 रेज n पॉसिबिलिटीज मेरे पास हैं टोटल एलिमेंट्स की. ठीक है, 2 रेज n केसेस हैं. यू कैन से कि हर एलिमेंट की दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटीज 2 रेज n. नाउ इफ आई हैव टू चेक दैट ब्रूटली कि मेरा सबसेट 1 कितना है. ठीक है, मेरे सबसेट 1 में कितने तरीके के एलिमेंट्स या फिर कितने वेज में एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो 2 रेज n वेज मुझे चेक करनी पड़ेंगे. अब क्या मुझे अगर सबसेट 1 पता है तो मैं सबसेट 2 निकाल सकता हूं? ऑब्वियसली सबसेट 2 का सम मैं इजीली निकाल सकता हूं. कैसे? क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो सम 1 प्लस सम 2 होगा वो कितना होगा, सम के इक्वल. दिस इज ऑब्वियस. ओके, क्योंकि जितने एलिमेंट्स हमने S1 में डाले, बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट्स कहां चल जाएंगे, S2 में. ओके, दैट्स वाई दोनों का सम जो है वो कितना हो जाएगा, सम के इक्वल. तो अगर मुझे सम 1 पता है एंड टोटल सम पता है तो आई कैन इजिली कैलकुलेट सम 2. ओके, और अगर मुझे सम 1 और सम 2 पता है तो आई कैन इजिली कैलकुलेट एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ सम 1 माइनस सम 2. ओके, तो अगर मैं बोलूं कि मैं ब्रूटली कितने वेज में कैलकुलेट कर सकता हूं अपना टोटल आंसर, 2 रेज n कुछ पॉसिबिलिटीज में. ठीक है, फाइन. अब मैं अगर इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और जनरलाइज करूं. ठीक है, थोड़ा सा और जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले ब्रूटली अगर मुझे कोई चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, लाइक S1 के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, मैं उसको इंक्लूड करूं या ना करूं, तो ये चीज हम रिकर्जन से कर सकते हैं. ठीक है, और रिकर्जन की कॉम्प्लेक्सिटी भी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 2 रेज n ही होगी. ठीक है, S1 जनरेट करने की. तो मैं अगर S1 जनरेट करने का एक रिकर्जन फंक्शन लिखूं सिंपली, ठीक है, क्योंकि मुझे जो थिंग जनरेट करनी है वो क्या है, सम ऑफ 1. उसके आगे मेरा क्वेश्चन जो है ऑब्वियस है, उसके आगे मुझे फिर बताने की जरूरत नहीं है आई गेस. ठीक है, तो मैं एक रिकर्जन फंक्शन सा लिखूं अगर रिकरेंस. ठीक है, रिकरेंस फंक्शन फॉर कैलकुलेटिंग सम 1. मैं क्या करूं, इनपुट्स लिख लेता हूं. तो मेरी एक एरे रहेगी. ठीक है, उसका साइज रहेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. फिर तीसरी चीज क्या रहेगी, कैलकुलेटेड सम सो फार, जिसमें मैं अपना स्टोर करूंगा जितना अभी तक मैंने टोटल नंबर का एलिमेंट्स का सम निकाला है, और ये टोटल सम यू कैन से टी सम. ठीक है, फाइन. नाउ यहां पे आओ, चेक करो, अगर तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज i इज इक्वल्स टू 0 हो गया, मतलब कोई तुम्हारे पास एलिमेंट नहीं बचा है, तो n इज इक्वल्स टू 0 है अगर, तो तुम सिंपली क्या रिटर्न कर दोगे,
कि तुमने टोटल सम जो था पॉसिबिलिटीज या फिर जनरेट कर लिए हैं, ठीक है, फाइन। और यू कैन ऑल्सो रिटर्न योर आंसर फ्रॉम हेयर, तुम जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो भी रिटर्न करवा सकते हो यहाँ से। कैसे, ये चीज बता दूं कि मान लो तुम्हें सम वन का जो सम वन की वैल्यू है वो तुम इसमें स्टोर कर रहे हो, है ना, दैट इज फाइन। तो सम टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी सम माइनस सम, ये है तुम्हारा सम टू और ये है तुम्हारा सम वन, ठीक है। तो तुम यहां पे क्या रिटर्न करवा सकते हो, टी सम माइनस सम वन माइनस सम वन, ओके। और यू कैन राइट इट एज टी सम माइनस टू टाइम्स ऑफ सम वन, ओके। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर है फॉर दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब ये चीज मैं दोबारा नहीं बता रहा, अगर इसमें कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट है। उसके आगे तुम्हें सिंपली क्या रिटर्न करना है, दो पॉसिबिलिटीज हैं, इधर तुम एक एलिमेंट को इंक्लूड करोगे, इधर तुम एक एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। तो और तुम्हें दोनों का लेना क्या है, मिनिमम इस फंक्शन में, ठीक है। अब तुम रिटर्न क्या करवा रहे हो इस फंक्शन से, ये चीज, तो इस चीज का तुम्हें मिनिमम कैलकुलेट करना है। तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, रिटर्न। अब रिकरेंस रिलेशन लिखने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमने काफी सारी रिकरेंस रिलेशन देख लिया और रिकर्जन हम पहले ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो करंट एलिमेंट के लिए मैं n-1 कर दूंगा, क्योंकि करंट एलिमेंट को हम कंसीडर कर चुके हैं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद लेट्स से मैं करंट एलिमेंट को इंक्लूड कर रहा हूं, तो सम प्लस एरे ऑफ i, ठीक है। और टोटल सम मेरा सेम रहेगा, यहां पे आई गेस तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, तो ठीक है, उसको चेक कर लेना, ठीक है। और इसका मिनिमम और करंट एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया तुमने, तो एक तो कम हो ही जाएगा, और ये सम वैसा ही रहेगा, करंट एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया और टी सम ये ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा रिकरेंस रिलेशन तुम्हारा लिख दिया मैंने, जिसमें 2 रेज n केसेस बनेंगे रिकरेंस ट्री में, और तुम उसकी हेल्प से इस चीज की वैल्यू निकालोगे इस क्वेश्चन की, ठीक है। तुम्हें रिकरेंस में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं बता दूंगा, ठीक है। और इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जनरलाइज हो जाएगा और जो तुम पहले पढ़ चुके हो वही हो जाएगा, ठीक है, फाइन। तो लेट्स से कि अब हमें मेन चीज करनी क्या थी, हमें टी सम दैट इज टोटल सम माइनस 2 टाइम्स ऑफ सम वन, इस चीज की वैल्यू निकालनी थी, इस चीज को मिनिमाइज करना था, यू कैन से, ठीक है। ये मेरा मोटिव है इस क्वेश्चन का। ये चीज मिनिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल बन जाएगी, यू कैन इजिली से दैट, ठीक है, क्योंकि ये चीज फिक्स्ड है, ये चीज भी फिक्स्ड है, तो ये चीज जब मैक्सिमम हो जाएगी जब ये चीज मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। तो सम वन मैक्सिमम हमें करना है, तो अगर मैं लिखूं टी सम, और इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 0, तो अगर मैं लिखूं टी सम कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 सम वन, ठीक है। और यू कैन से कि टी सम बाई 2 सम वन, सम वन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है, टोटल सम बाई 2, एंड इट इज ऑल्सो ऑब्वियस, ठीक है। तो थोड़ा सा भी हो सकता है काफी ज्यादा मैथ्स समझ में ना आ रही हो, तो यू कैन जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो इस चीज से मुझे क्या पता चला कि जो मेरा सम वन है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, टोटल सम बाई 2, ठीक है। तो अब मुझे बस इतना चेक करना है कि मुझे कोई भी सबसेट मेरी एरे में है, ये मेरी गिवन एरे है, ठीक है। अब मुझे बस मैक्सिमम पॉसिबल सम बनाना है लेस देन टी सम बाई 2, मैक्सिमम पॉसिबल सम लेस देन टी सम बाई 2। अब ये चीज क्या तुम लोग बस जनरलाइज करो कि ये चीज क्या तुम लोग पहले पढ़ चुके हो नैपसैक में, इस तरह का चीज। नैपसैक में होता क्या था, तुम्हारे पास एक बैग होता था, उसकी एक लिमिट होती थी, ठीक है, लिमिट होती थी, और तुम्हें उस मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज बतानी थी जो तुम उस नैपसैक में डाल सकते हो। और यहां पे क्या है, टी सम टोटल सम बाई 2 तुम्हारी लिमिट है ना, ये तुम्हारी लिमिट है, और
तुम्हें बस एरे से एलिमेंट्स बताने हैं मैक्सिमम पॉसिबल कि तुम इस नैपसैक में डाल सको कि तुम्हारी जो लिमिट है वो एक्सीड ना हो, टी सम बाई 2 से ज्यादा ना आए। तुम इतना बनाओ या इससे जस्ट छोटा। तो ये काफी हद तक तुम्हारे नैपसैक से सेम है, ठीक है। अब हम इसका डीपी सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब डीपी सॉल्यूशन आई गेस मुझे बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस नहीं देखे नैपसैक के तो जस्ट गो एंड वॉच दैट सॉल्यूशंस एंड नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग डीपी सॉल्यूशन ऑफ दिस कोड, ठीक है, दिस अप्रोच। तो मैंने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, जिसमें एरे और सम पास कराया। फिर मैंने टोटल सम 0 ले लिया एरे का, उसमें टोटल सम मैंने स्टोर कर दिया, टोटल एरे का सम। फिर मैंने एक डीपी एरे बनाई, ठीक है, n+1 एंड सम +1 की टोटल, ठीक है। और फिर मैंने सिंपली क्या किया, ये दोनों जो लाइंस हैं, ये दोनों लूप्स हैं, ये मेरे इनिशियलाइजेशन ऑफ डीपी एरे कर रहे हैं, ठीक है। तो डीपी i0 क्या है, कोई भी सम पॉसिबल है इफ द सम वी आर मेकिंग इज 0। आई गेस समझ में आ गया, ठीक है। फिर कोई भी सम पॉसिबल नहीं है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज 0, ठीक। फिर मुझे टोटल पॉसिबिलिटीज या टोटल केसेस देखने हैं, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बोलूं तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं करंट एलिमेंट को इंक्लूड करूं या ना करूं, ठीक है। तो अगर मैंने करंट एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया तो डीपी ऑफ ij कितना हो जाएगा, सिंपली डीपी ऑफ i-1j, ठीक है, क्योंकि सम मेरा j ही था और करंट एलिमेंट को इंक्लूड करने के बाद भी जो मेरी पिछली वैल्यू थी डीपी i-1j वही हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं करंट एलिमेंट को इंक्लूड कर सकता हूं, ठीक है, करंट एलिमेंट की वैल्यू अगर जो मेरा सम है उससे कम है तो मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा और वो सिंपली मेरी क्या हो जाएगी, डीपी ऑफ ij विल बी डीपी ऑफ ij और डीपी ऑफ i-1 एलिमेंट्स तक मैं ले रहा था, ठीक है। और मेरा सम इनिशियली क्या होना चाहिए, j माइनस एरे ऑफ i-1, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अगेन कोई भी डाउट है, मैंने बहुत बार ये चीज समझाई है पिछले वीडियोस में। जस्ट गो एंड वॉच दिस प्लेलिस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, बहुत इजी हो जाएगा डीपी समझने के लिए आपको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। फाइन। अब मैंने डीपी एरे में क्या स्टोर किया है कि मैं कितने एलिमेंट्स को लेके कौन कौन सा सम बना सकता हूं, ठीक है, कौन कौन सा पॉसिबल सम मैं बना सकता हूं। तो अब मुझे सिंपली क्या करना है, सम बाई 2 से पीछे की तरफ चलना है, सम बाई 2 से पीछे की तरफ चलना है और जो भी पहला पॉसिबल सम मुझे मिलेगा, सम बाई 2 से पीछे की तरफ चलो डिक्रीजिंग पोजीशन में, और जो भी पहला पॉसिबल सम मुझे मिलेगा मैं वही वाला ट्रू कर दूंगा, ठीक है, और वहां पे मैं अपना डिफरेंस अपडेट कर दूंगा। So thank you guys for watching this video. If you still have any doubt, you can just ask me in comment section. And again, just go to newtonschool.co, check their grand coding contest. And if you have any queries, just ask me in comment section. And subscribe this YouTube channel. Thank you guys for watching.